गुड मॉर्निंग परी। गुड मॉर्निंग आधा फेस। बाय बाय। तो टोनर जब तक सूखेगा मैं आपको मॉइस्चराइजर के बारे में बता देती हूँ। सूखेगा तो নহয় তাকে এটো অলপ কিবা বেছি হেৰি চেৰি দি জানো ক্ৰীম চিম দি দিয়া কিবা আমি এটো ৰুটি খাই ভাল হয় বহুত বেয়া টেষ্ট কৰে কিটো সেইটো আউটাৰ কভাৰিং কিন্তু এইটো বহুত আনহেল্ডি, সেইটো আকৌ হেল্ডি। সেইটো বেছি টাইম এইটো পুৰা ডিপ ফ্ৰাই কৰে ন। পাপাই কৈছে ফ্ৰাই বস্তু খাব নালাগে। কিন্তু বাবাই কৈছে কি ফ্ৰাই বস্তু খাব নালাগে ডিপ ফ্ৰাই বস্তুটো কোৱা নাছিল যেনেকে ফ্ৰুটছ ৱা কি কে ফ্ৰুটছ কে মই ফ্ৰাই কৰা মই তেতিয়া নিজৰ পুৰা লাইফ কি ফ্ৰাইড ফ্ৰুটছ খাইছো নেকি তুমি ক'লা ডিপ ফ্ৰাই। ডিপ ফ্ৰাইড মানে তেলত বেছি তেলত বহুত ফ্ৰাই কৰাটো। ফ্ৰুটছটো তেলত ফ্ৰাই নকৰে নহয়। অ' চোৱা মই ভুল কৰি দিলোঁ। সেইটো কম চাহটো তোমাৰ বেছি চাহটো হ'ব। মই তোমাক বেছি চাহ দিয়াটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ। ৱা কেলে পাপাই কম চাহে খায়, এৰি থৈ গুচি যাব আকৌ মোৰ ইমান ভেলুৱেবল চাহটো। তুমি এনেকা না মানুহ হয় শুনা আচ্ছা পাপা নিজে নিজে খানা এৰি দিয়া। প্লিজ শুনা শুনা আমাৰ গৰম দিনত খোজকাঢ়ি কৈছে কি বলা কিবা ৰিফ্ৰেছিং খাওঁ কৈছে মই নেমু পানী খাওঁ না কৈছে নেমু পানী কেতিয়াবা ৰিফ্ৰেছিং খাওঁ বলা চাহ খাওঁ এনেকা মানুহ হয় তুমি গুড মৰ্নিং পৰী। গুড মৰ্নিং আধা ফেচ হৈ গ'ল ন পঢ়া? পাৰিবানে আজি? ফাৰ্ডিনেণ্ড মেগেলেন জেৰাৰ্ডাছ মাৰ্কিটাৰ ফাৰ্ডিনেণ্ড মেগেলেনে কি কৰিছিলে? দ্য ফুড উই ফাৰ্ডিনেণ্ড মেগেলেন ডিছকভাৰ কৰিছে পৰ্তুগীজ sailor around the world to prove that the earth is পাপা টিকট কর spherical in shape. spherical and shape. দ্য ফুড উই Hey, no. Gerardus কি মোৰে মনত নাথাকে। Gerardus Mercator. কি কৰিছিলে? আরে হৈছিল যে কিবা গুল গুল যে কিবা হৈছিল হা কোৱা গোল গোল কি হৈছিলে? Hey, first কিন্তু মোক ক'ব দিয়া। Gerardus Mercator Atlas বনাইছিল of maps. আৰু এতিয়া পৰীৰ গোল গোলটো কি আছিলে? আমি ভুল গৈ। আৰে তাৰ হৈছিল যে কি আচ্ছা সেইটো ভাল হৈ যাব। আজি মই তুমি আহি পাবা নহয়, আইচটো লগাই দিম দেই। যোৱা দেৰি হৈছে এতিয়া যি কেজুৱেলি কথা পাতি আছোঁ আমি। বাই, বেষ্ট অফ লাক। বাই থেংক ইউ কালি আছে মই কাম দিম কালি পৰীৰ মেথছ আছে, পৰী হাঁহিব। ককৰোচ নহয়, এইটো ক্ৰিকেট হয়। ই মৰেল কেনেকে পুৰা সাল উলাই গল ক্ৰিকেটবিলাক এনেকৈ আৰু কি এনেকে আৰু হা হা এইবিলাক এনেকে আৰু মানে বেগ নাই লোৱা যে পাপা? বাবা বেগ বাবা আকৌ আহিব নি আহি পেলাই আকৌ বাছত যাবই নেকি? গুড মৰ্ণিং। গ'ল নি ইহঁতে? এতিয়া নিয়ে। আচ্ছা বাই বাই। অল দ্য বেষ্ট বাবু। মিছ ৰাণী তলত খুলিব নোৱাৰে পকাই দিব লাগিব सो मैं अभी नहा के आई हूँ, मुझे अपने बच्चों को लाने जाना है स्कूल से। सो उससे पहले मैं अपना स्किन केयर दिखाना चाह रही हूँ कि मॉनसून में आप लोगों ने देखा था मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो गया था, तो अभी स्किन धीरे धीरे उस चीज़ से रिकवर कर रहा है। और मैंने अपना स्किन केयर रूटीन भी थोड़ा सा चेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू द सीज़न, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली है मेरा स्किन।
मतलब ऑयली हो गया है अभी, बहुत ज़्यादा तो पहले ऑयली नहीं था, अभी हो गया है। तो उसके लिए आजकल अभी मैं नहा के आई हूँ, मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है। और अभी जस्ट फेस धोने के बाद मैं यूज़ करूँगी एक टोनर। ये यूज़ करती हूँ मैं, ये वाला टोनर। कुछ भी टोनर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बस स्किन को सूट करना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको इस तरह भी ड्राई होने दे सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा इसको पैक कर देंगे ना तो ये अंदर तक अच्छे से चला जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा भी सूखने के लिए दूंगी। तो टोनर जब तक सूखेगा, मैं आपको मॉइस्चराइज़र के बारे में बता देती हूँ। तो पहले मैं सिटाफिल यूज़ करती थी। सिटाफिल मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था, तो तब से मैं सिटाफिल ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन लेटली मुझे लग रहा था कि सिटाफिल यूज़ करने के बाद मेरा स्किन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और बहुत ज़्यादा फिर पसीना आने लग जाता है। तो मैंने कहीं पे पढ़ा है कि अगर आपका स्किन वो प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा है ना, तो वो पसीना ज़्यादा हो जाता है, वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। तो इसलिए अभी मैंने स्विच किया है। अभी मैं एज सच ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ये, और ये मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये हिमालय का मॉइस्चराइजिंग जेल है, एलोवेरा जेल है ये, लेकिन इसमें मॉइस्चराइज़र भी है। तो ये बिल्कुल वाटर बेस्ड है, मतलब इसमें कोई ऑयल नहीं है। और आई एम जस्ट स्वेयरिंग बाय दिस प्रोडक्ट। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरे फेस पे बिल्कुल ही लाइट है, कुछ भी मतलब हैवी सा नहीं लगता, और बहुत जल्दी ये फेस इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जिनका ड्राई स्किन है वो भी इसको लगा सकते हैं सीरम की तरह, लेकिन मेरा ऑयली है तो मैं इसको एज अ मॉइस्चराइज़र अभी लगा देती हूँ। और इसको अप्लाई करने के बाद आजकल मैं फेस पे और कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ, और दिस इज़ वर्किंग लाइक अ मैजिक। मतलब मेरा फेस बिल्कुल भी स्वेट नहीं करता है और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है, और बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हो गया है। अभी ये एलोवेरा जेल है ना, तो उसको भी सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके बाद जो मेरे ब्रेकआउट्स है, जो एक्टिव ब्रेकआउट्स है ना, उसमें मैं यूज़ करूँगी ये लैक्टोकैलामाइन। ट्राइड एंड टेस्टेड है लैक्टोकैलामाइन पिंपल्स के लिए, लेकिन पूरे फेस पे आप यूज़ मत कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ब्रेकआउट है, मैं वहाँ थोड़ा थोड़ा उसको पैच बना लूँगी, और बस यही है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी, इसी तरह से अपनी स्किन को छोड़ दूँगी। और फिर मैं आपको इवनिंग वाला तो स्किन केयर पता नहीं दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ। इवनिंग में मैं क्या करती हूँ, पूरा सब कुछ काम जब मेरा हो जाता है, सब कुछ पसीने वसीने वाला काम हो जाता है, जब फाइनल नहाने का टाइम होता है ना, उससे पहले मैं अपने फेस पे फेस पैक लगा देती हूँ। फेस पैक लगाने के बाद उसको जितना देर वो सूखता है उतनी देर में फिर मैं नहा लेती हूँ साथ ही साथ। और उसके बाद सेम यही रूटीन करती हूँ मैं, और लैक्टोकैलामाइन लगा के सोती हूँ। और सुबह उठने के बाद फेस पे मैं आइस डैप करती हूँ। तो आजकल मुझे थोड़ा अपनी स्किन में फ़र्क नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट थिंग है कि मेरे बाल, अभी उस दिन जो मैंने आपको दिखाया था कि हनी और लेमन, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। और स्वेटिंग तो इस तरह से वो कम नहीं हो जाता है, लेकिन स्वेटिंग की वजह से जो हेयर फॉल है ना, मुझे लग रहा है कि कम हो गया। आज जब मैं शैम्पू करके आई हूँ तो मुझे हेयर फॉल बहुत कम हुए हैं, टच वुड। और अभी मैंने शैम्पू किया है, और अभी मैं टाल को खोलने के बाद मेरे बालों को बिल्कुल ही कोम नहीं करूँगी मैं। इसमें मैं जो लिव इन कंडीशनर होता है, लिवॉन लगा दूँगी, और लिवॉन लगाने के बाद मैं हाथों से ही इसको थोड़ा सा सुलझा लूँगी। और जब मेरे बाल सूख जाएंगे उसके बाद मैं इसको कोम कर दूँगी। और यकीन मानिए कोम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं जब से हनी लेमन यूज़ किया है मैंने। तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पता चल रहा है मुझे। और नेक्स्ट थिंग की जो इचीनेस होती थी ना स्वेटिंग की वजह से, वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई है। तो आई एम जस्ट स्वेयरिंग बाय दिस। तो इसको तो मैं मानसून के दौरान अभी यूज़ करने वाली हूँ। तो बस यही है मेरा स्किन और हेयर केयर, और जो कि बहुत ज़्यादा काम दे रहा है अभी। सो एक दिन परीर कंटिन्यूअस क्वेश्चन, पापा फुटबॉल किती आहे बो? और आज की होता ना हाँ, पर रखा आराम से और आज वेट इज ओवर नो।
परीर डल परी সুইমিং সুটো আহি গ'ল তাৰ বাকী দে সুইমিং এই সুট আহি গ'ল আৰু মই গৈছিলোঁ সুৰভি ঘৰত আজি আৰু সুৰভিয়ে মোক দি পঠাইছে ৰ'বা দেই সুৰভিয়ে বনোৱা আচাৰ আৰু পাপাই এয়া দিছে বৰ আজি দেখো হা খোলা উশাহ নাপাবা সেইটো দি আৰে বুক আচাৰ নহয় মোৰ আমৰ আচাৰ দুবিধ খুলি ৰুকি পেলাই বনাইছে আৰু সেইটো টুকুৰাকৈ বনাইছে খাই পেলাই মই ৰিভিউ দিম কিন্তু মই আচাৰ খাই বিৰাটেই ভাল পাওঁ এইবাৰতো মোৰ আমৰ আচাৰ বনোৱা চাবলৈ দিয়া মই তেতিয়া চাব পৰা নাই ভালকে গুছ আৰু এইটো ডাল কিমান হেপ্পী পাৰি তুমি বহুত এই স্কঞ্চি মিলিছে নেকি নহয় নহয় চ' আজি গাড়ী ছাৰ্ভিচিং আহিছিলে হিউণ্ডাই ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে ৰাতিপুৱাই হাজবেণ্ডে কৈছে যে গাড়ীখন তুমি ছাৰ্ভিচিঙত দি আহা কি কয় ইয়াতে আহিছে যেতিয়া সুবিধা হ'ব মই ৰাতিপুৱা এবাৰ গাড়ীখন ছাৰ্ভিচিঙত দি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ছাৰ্ভিচিঙৰ পৰা আনিবৰ কাৰণে 4টা বাজিছে এতিয়া টোপনিও আহি গৈছিলে আৰু মুখত একো খানা নাই এনেকৈয়ে গৈ আছোঁ আৰু চ' কেইবাদিনো আজি বৰষুণ আৰু কি গতি চাওকচোন ৰ'দটো অলপমান ওলাই আকৌ বৰষুণ দিয়ে অলপমান ওলাই আকৌ বৰষুণ দিয়ে ইয়াত খোজকাঢ়ি ওলাবলৈ মন নোযোৱা নিচিনা কিন্তু গৰমত বেয়াও নালাগে বাৰু ঠাণ্ডা লাগি থাকে কিন্তু তথাপি অত্যাধিক বৰষুণো কেতিয়াবা ভাল নালাগে যে কেতিয়াবা ৰ'দটো লগা নিচিনা লাগে চ' ইয়াতে কেম্প লাগিছে আজি ছাৰ্ভিচিঙৰ মইতো ভালেই পালোঁ কেম্প লোৱাৰ কাৰণে চ' গাড়ীখন ছাৰ্ভিচিং কৰাই আনিলোঁ খোজকাঢ়ি গ'লোঁ তাৰপিছতে আহোঁতেতো বাৰু গাড়ীখন চলাই আহিলোঁ আৰু ৰ'দ অলপ ওলোৱা দেখি কাপোৰবিলাক বিৰাটেই মানে মনৰ সুখেৰে মই মানে বাহিৰত উলিয়াই দিছিলোঁ কিন্তু ৰ'দ নাই দুপৰীয়াৰ পৰা আকৌ বৰষুণ দিবলৈ ধৰিলে চ' কাপোৰৰ ষ্টেণ্ডডাল ইয়াতে আছে এতিয়া এইডাল ভিতৰলৈ ভৰাই নিওঁ সদায় দিনৰ একেই কাহিনী সেই একেই কাপোৰ ধুলোঁ বাহিৰত অলপ সময় তাৰপিছত এই যে চিৰি ৰেলিংটো ইয়াতে নহ'লে ওপৰৰ ৰুমত মেলোঁ কিন্তু এতিয়া ওপৰৰ ৰুমত পাৰি আছে চ' তাই থাকিলে কাপোৰ চাপোৰ মেলি থ'লে তাই বেয়া পায় তাই তাতে অলপমান টাইম স্পেণ্ড কৰে দিনত আৰু মই একচুৱেলি অলপমান টোপনি গৈছিলোঁ পক্ষীক পঢ়াই ভাতটো খাই উঠি তাৰপিছত তাহাঁতি তেতিয়াই ফোন কৰিলে যে বাইদেউ আপোনাৰ গাড়ীখন হ'ল লৈ যাওকহি চ' মই টোপনিতে মানে উঠি পেলাই গ'লোঁ মুখ চুখ ধুই তথাপি ফ্ৰেছ লগা নাই চ' সেইকাৰণে এতিয়া গাখীৰ চাহ একাপ পাতিছোঁ এনেই এইটো টাইমত মই গাখীৰ চাহ নাখাওঁ নৰ্মেলি একেবাৰে স্নেক্সৰ টাইমতে খাওঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ একদম টোপনি লাগিছে আৰু এইফালে কম্পিউটাৰটো অন কৰি লৈছোঁ অন কৰিব দিছোঁ এতিয়া ভ্লগটো মোৰ কালিৰ ভ্লগটো মই এডিট কৰি থৈছোঁ কিন্তু ভইচ অভাৰ কৰিব আছে চ' সেইকাৰণে এতিয়া ভইচ অভাৰ কৰি দিম আৰু চাহ খাই সেইটো কামত লাগিম এতিয়া আৰু এতিয়া পাৰীটো ওপৰত আছে তাই শুইছে নে কি কৰিছে মই ওপৰত চোৱাগৈ নাই কিন্তু পক্ষী শুই আছে তাই এতিয়া তাই পঢ়ি টোপনি গ'ল তাইৰ লগতে মই শুয়ে আছিলোঁ কিন্তু সেয়া আৰু মই যাব লগা হ'ল বৰ্তমান এতিয়া গাখীৰ চাহ কাপ ভালকৈ খাম আৰু মই যে চাহৰ মছলা বনাইছিলোঁ এইখিনি আছে ভালকৈ মছলা দি তাৰ মছলা চাহ এক কাপ ভালকৈ খাম তাৰপিছত এডিটিঙত বহিম तो लास्ट व्लॉग में मैंने मसाला चाय के लिए मसाला जो बना के रखा हुआ था उसी मसाले से अभी मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे किचन में क्योंकि मैं गई थी अपनी गाड़ी को एक्चुअली सर्विसिंग में दे के रखा था Hyundai से लोग यहाँ पे कैंप करने बीच में आते हैं तो जब आते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा ही सुविधा हो जाता है कि टाउनशिप के अंदर ही हम गाड़ी सर्विसिंग करा पाते हैं और मेरा गाड़ी का सर्विसिंग ड्यू था बहुत दिनों से ही ड्यू था तो इसलिए मैंने सोचा नहीं मुझे हस्बैंड ने कॉल किया कि कैंप आया है तो तुम जाके दे के आओ उसको तो वहाँ गई मैं और थैंकफुली हो भी गया मेरा सर्विसिंग अच्छे से हो गया और उसको लेके आई लेकिन मैं एक्चुअली पक्षी को लंच करने के बाद पक्षी को पढ़ाते मैं भी सो गई और पक्षी भी सो गई थी और बीच में उनका कॉल आया कि हो गया है आप गाड़ी लेके जाइए तो बिल्कुल मतलब जो एक बहुत मीठा सा एक जो नैप आ रहा था वो टूट गया सो मैं वहाँ से आई आके सीधे मैं अभी
चाय बना रही हूँ, 1 कप एकदम कड़क चाय अपने लिए, ताकि मेरी नींद खुले और मैं जाके अपनी एडिटिंग में बैठूँ, क्योंकि व्लॉग जो है ना, कल वाला जो व्लॉग है उसको वो एडिट हो चुका है, उसका वॉइस ओवर करना है और इस व्लॉग को भी फिर मैं एडिटिंग में ही लगाऊंगी। तो वही सभी काम है, इसलिए अभी बिल्कुल ही ये देखिए कड़क कड़क चाय बना रही हूँ मैं। और इस टाइम पे मुझे तो चाय हर टाइम ही अच्छी लगती है, जब भी कोई मुझे चाय दे दे, लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ अपने चाय का जो क्रेविंग होता है, लेकिन आज अभी नहीं हो पा रहा है, तो 1 कप अच्छे से अभी चाय पीऊँगी। अगर मेरे कैमरे से खुशबू जाती ना तो आप लोग को ज़रूर मिलता इस चाय की खुशबू इस टाइम जो मुझे मिल रही है ना, सच में मैं बताऊँ। और आप सबको पता है कि असम चाय के लिए फ़ेमस है, चाय के बागानों के लिए फ़ेमस है, और यहाँ की चाय में जो खुशबू है ना वो कहीं नहीं मिलती है, जो चाय का असली खुशबू है। और इस चाय को पीने के लिए अभी मैं बहुत ज़्यादा ही बेकरार हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक क्लिप बना लूँ, आपको दिखाओ चाय, और अगर मैं खुशबू आपको दे पाती ना तो श्योर देती, इसकी खुशबू से ही आपको चाय पीने का मन कर जाता। सो কালি ব্লগটো মই এডিট কৰিলোঁ, এতিয়া এক্সপৰ্ট কৰিব দিছোঁ, আৰু এইটো ব্লগ এতিয়া এইখিনি যোনখিনি মোৰ ক্লিপ আছে এইখিনি মই ট্ৰান্সফাৰ কৰি থ'ম। এডিটিং কৰিব সময় পাওঁ নে নাপাওঁ এতিয়া নাজানো, কাৰণ 5টা বাজিলে, এতিয়া আকৌ ইভিনিঙৰ গোটেই কামখিনি কৰিব আছে, সন্ধিয়া চাকি জ্বলাব লাগিব, হাজবেণ্ড আহি পাব, চাহ তাহ বনাব লাগিব। চ' যিমানখিনি দেৰি পাৰোঁ ইয়াতে বহিম, তাৰপিছতে সন্ধিয়া কামখিনিত লাগিম, আৰু সন্ধিয়া কামখিনি বহুত জলদি কৰি শেষ কৰিব লাগিব, কাৰণ কাইলৈ পক্ষীপাৰীৰ লাষ্ট টেষ্ট আছে, চ' দুইজনীকে মই পঢ়াব লাগিব। চ' সেইকাৰণে মানে ইভিনিংটোলৈ মই নিজকে ফ্ৰী কৰি দিবই বিচাৰোঁ। আৰু এইটো ব্লগ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আৰু নেক্সট ব্লগটো কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। আজি ইভিনিং একো শ্বুট নকৰোঁ। হোপ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना पाहिबो मुझे चैनल टू। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी मैंने मेरा जो लास्ट वाला ब्लॉग है उसकी एडिटिंग करके उसको अभी मैं एक्सपोर्ट पे लगा रही हूँ, और ये जो ब्लॉग है ना इसका जितना भी क्लिप्स है उसको अभी मैं ट्रांसफ़र करके रख दूँगी, और थोड़ा सा एडिटिंग पर भी बैठूंगी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और शाम के सारे काम बाकी है। शाम होते ही एक अलग सा, जैसे अलग सा दिन स्टार्ट होता है ना, वैसे होता है। दोपहर के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन लगता है, लेकिन शाम के बाद फिर से वही भागा दौड़ी टाइप, लाइक स्नैक्स देना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, बहुत सारे काम, जैसे कपड़े जितने भी मैंने धोने को दिए हैं सारे सब बेचने होते हैं, तो बहुत कुछ काम होता है। तो इसलिए आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कल का ब्लॉग कल सुबह से शुरू करूँगी। आज इवनिंग और कुछ शूट नहीं करूँगी। तो होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।